है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर आशा मेरे पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर आशा मेरे पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बढ़े, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
Elohim Shirukigado Elohim Okamire Igado Elohim. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all see how great is our God. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। गाए हो सना महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया।
Praise the Lord. Let us come to the Lord's table. Let us unite our hearts and come together as one big family. 1 Corinthians 11 verse 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. This is a very important scripture, for it really says, for every time you eat this bread and drink this cup, you are retelling the message of the Lord's death, that He has died for you. Do this until He comes again. We are actually proclaiming and announcing the Lord's death, but till He comes really means that He rose and He is coming back again. Let's bow our heads. Father God, You are gracious, You are loving, You are kind, You are marvelous, Lord, and You have always poured Your rich benefits over our lives. And today we come at the table. Forgive us if we have sinned against You. Father, if we have grieved Your Holy Spirit, if we have not walked in Your ways, we ask You for pardon, for mercy, and wash us clean by Your precious blood, Lord Jesus. We also ask You, Lord, to forgive us of any wrongdoing in thoughts, in words, in action. Forgive us, Lord, if we have hurt someone, Lord, if we have caused harm to someone, Lord, if we have pained someone, Lord. We need Your forgiveness, Lord. And we also bless those who curse us, and we also pray for those who persecute us. Father God, today we surrender our lives to You. We thank You for this great opportunity that we can come at the table of celebration
at the table of victory, at the table where we are reminded of your great work on earth. And we thank you, Father, that as we partake of the bread and the cup, the bread that symbolizes your broken body, that by your stripes we are healed, and the cup that symbolizes the blood for the remission of sins, that we know that we are forgiven when we come at the altar. We thank you, Lord, in doing so. We thank you that we announce and recognize and remember Jesus who died for each one of us, and also remember and hope of his coming to take us back. Father, we just thank you once again. We just surrender our lives to you. We put everything before your throne of grace. Thank you, my God. In Jesus' name we pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भेंट और दशवांश के लिए प्रार्थना करेंगे एक साथ। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, ये अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु के हम अपने भेंट और दशवांश फिर एक बार लेकर आ सकते हैं प्रभु, और आपके वचन के अनुसार जैसे आपने कहा दो और आपको दिया जाएगा। हम इस समय प्रभु अपने आप को ले आते हैं प्रभु, और हमारे भेंट और दशवांश हर चीज़ का जो आपने हमें दिया है, वो सारी चीज़ों का दशवांश और भेंट हम ले आते हैं इस समय प्रभु आपके सामने और अर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम सभी आपके आज्ञा का पालन कर रहे हैं प्रभु, आपकी आशीषें हर एक के ऊपर आप भेजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम अपने भेंट दशवांश को विश्वसनीय रीति से आपके आज्ञा के अनुसार पालन करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीषें हमारी नौकरियों के ऊपर, हमारे कामकाज के ऊपर, हमारे व्यवसायों के ऊपर प्रभु, हर जो काम जो हम करते हैं प्रभु, हर एक काम के ऊपर आपकी आशीषें आए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे हम अपना समय भी देते हैं प्रभु आपके राज्य के कार्य के लिए प्रभु, आपका स्वर्गीय समय आप हमें दोगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जैसे हम अपने आप को अर्पित करते हैं प्रभु, आपने ऑलरेडी आपकी आशीषें हमारे लिए दे दी है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जैसे पिता परमेश्वर सारी चीज़ों से हम जैसे आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी आशीषें जो स्वर्गीय है भरपूरता से हर एक के ऊपर और हर एक के परिवार के ऊपर आने दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय आशीषों का भंडार खोलकर अपने बच्चों पर आशीष भेजो प्रभु। इसी समय पिता हम प्रार्थना करते हैं ताकि हर तकलीफ और जो भी कठिनाइयां हैं, खास करके आर्थिक रीति से पिता परमेश्वर जो भी परेशानियां हैं प्रभु, टेंशन्स है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर आर्थिक जो समस्याएं हैं वो निकल जाए प्रभु, और आपकी ओर से सफलता, आपकी ओर से धन संपत्ति पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से है वो आपके बच्चों को मिल जाए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये समय आप अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर, जैसे हम दे हम आपके आशीषों को पाए पिता परमेश्वर, और हर अड़चन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि यीशु मसीह के द्वारा चंगाई उपलब्धि हमें दिया गया है और हम वो पाते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, एक साथ हम कहेंगे आमेन आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। We come to you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं। Our God is a good God. हमारा प्रभु भला है। 2021, ये साल a year of great hope, आशा का साल, a year of preparedness. तैयार रहने का साल। God blesses His people year after year. और हर साल परमेश्वर अपनी आशीषें भेजते हैं। But every year is a year of progress for His people, for the Church of Jesus Christ. लेकिन हर साल जो है हम जो प्रगति करते हैं प्रभु में, जो यीशु पे विश्वास करते हैं। And Father, today we come to you. और पिता आज फिर एक बार हम आपके पास आते We हैं। ask you to anoint this way. हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को आप अभिषेक करो। May your light, Lord,
erase every kind of darkness in our very lives. और आपका प्रकाश हमारे अंदर के हर अंधकार को निकाल दे प्रभु। May we today gain understanding. आज हम समझ के आत्मा को पाले, May we just move in your Holy Spirit. आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार चले। And Father, we ask you, may your word do its total and complete work in our lives today. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका वचन अपना परिपूर्ण कार्य हमारे जीवनों में करे आज। We once again yield to the Holy Spirit. फिर एक बार हम पवित्र आत्मा को समर्पण करते हैं। May Lord you be glorified through our very lives. और हमारे जीवनों के द्वारा आपको सारी महिमा मिले प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Our God is good. हमारा प्रभु भला We है। have entered into a year of blessing and the goodness of God. इस साल में जैसे हमने प्रवेश किया है उसके आशीषों में हमने प्रवेश किया। No doubt whatever happens, God's children are always blessed. और इसके बावजूद कि जो कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर के बच्चे हमेशा आशीषित होते हैं। God's children are always protected. परमेश्वर की सुरक्षा कवच उनके ऊपर होती है। We pray that the goodness of God would continue to follow us all the days of our lives. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन भर हमारे साथ हो। And whatever the giants are in our lives, it will be defeated through God's word that acts through each one of us. और हर प्रकार का दानव जो हमारे विरोध में आता है वो हार जाए यीशु के नाम से। Today's message is facing your giants. आज का शीर्षक है दानवों का सामना करना। The Bible says, though there be giants in the land, I will not be afraid. जैसे वचन में लिखा गया है कि देश में अगर दानव भी हो तो भी हम डरेंगे नहीं, We will be brought into the promised land. क्योंकि हम वाचा के देश में प्रवेश करेंगे। Let me encourage you today, you are in the promises of God. और आज को हम आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आशीषों में जी रहे हो। Some of you may be stuck in a situation. हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है किसी परिस्थिति में अटके हो, You may seem that the situation is like a wilderness. या आपको ऐसा लग रहा हो आपकी परिस्थिति एक निर्जन प्रदेश की तरह हो Things are not happening. और चीजें हो नहीं रही। But let me tell you, as you confess with your mouth, God will do great things in your life. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप अपने मुख से अंगीकार करेंगे सकारात्मक बातों को, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। Our 2021 that God has given us, we are handed over to Him because God looks at our future and He knows it. और परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं और इसी प्रकार से जो है इसकी वजह से वो हमारे जीवन को चलाएगा भी। The same thing Israelites were facing in the wilderness. और यही जो है निर्जन प्रदेश में परमेश्वर के लोगों ने चीजों का सामना किया। And at different times they were facing different issues. अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया। But in the facing of the giants, let us see in 1 Samuel 17. लेकिन दानवों का सामना करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, कैसे किया, 1 शमूएल 17वें अध्याय में आज हम देखेंगे। If you see, this is between David and Goliath. यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद और गोलियत के बीच की कहानी है। You may say, I know the story. तो आप कहोगे ये कहानी तो हमने सुना है, But there is such depth today that we must know how to overcome the giants in our life. लेकिन आज इसी कहानी का एक और पहलू देखकर हम ये समझेंगे कि हमारे खुद के जीवनों में जो अलग अलग प्रकार के दानव है उसके सामना हमें कैसे करना है। We are facing giants in our families. हमारे परिवारों में जो है दानव जैसे परिस्थिति है। We will face giants in the generations to come. आने वाली पीढ़ियों में शायद ऐसे दानव जैसे परिस्थिति होंगे, But we will defeat them in the matchless name of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम उनको हराएंगे। So the Philistines were gathered their armies together in battle against Israel. तो हम देखते हैं कि फिलिस्ती की आर्मी जो है, फिलिस्ती की जो सेना इजराइल सेना के विरोध में आ खड़ी हुई। And King Saul and his men of Israel also gathered together. और सामने जो है इजरायली सेना में से जो है शाऊल राजा खड़ा था। The Philistines stood on a mountain on one side and Israel stood on a mountain on the other side, and in between was the valley. और हम देखते हैं जो है फिलिस्ती का जो सेना है वो पहाड़ पर खड़ी थी और जो है इजराइल की सेना जो है दूसरी तरफ खड़ी थी, और जो है ये युद्ध का जो दृश्य दिखाई दे रहा है। And a giant named Goliath came out. He was called the champion of the Philistines.
दोनों के बीच में जो एक घाटी थी और हम देखते हैं कि फिलिस्ती का जो मुख्य व्यक्ति है, जो सैनिक है सेना में, जो गोलियत उसका नाम है, वो सामने आता है। He had his great armor, उसका शस्त्र था महान, but he stood and he cried out to the armies of Israel. लेकिन गोलियत सामने आकर इजरायली सेना को चुनौती देता He है। was challenging them. वो इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है Why have you come out to line up for battle? कि तुम क्यों आए हो युद्ध के लिए? Am I not a Philistine? क्या मैं फिलिस्ती व्यक्ति नहीं हूँ? And you the servants of Saul? और तुम सारे लोग शाऊल राजा के सेवक हो? Choose a man for yourself and let him come down to me. तो तुम में से एक व्यक्ति को तुम चुनो ताकि वो मेरा सामना करे। He is laying the conditions of war. यहाँ पर गोलियत जो है युद्ध के शर्त उनके सामने रख रहे हैं। He says, if he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. और गोलियत इतना आत्मविश्वास से कहता है कि जो व्यक्ति मेरे साथ लड़ेगा और अगर वो मुझे मार डालेगा तो जो है हमारी पूरी सेना तुम लोगों के सेवक हो जाएंगे। But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and servers. लेकिन अगर मैंने उसे मार डाला, गोलियत कहता है, तो तुम्हारी पूरी सेना के लोग हमारे लोगों के सेवक हो जाएंगे। He goes ahead and says something else. आगे जाकर वो कुछ और भी कहता है। He says, I defy the armies of Israel this day. वो कहता है कि मैं तुम्हारी सेना को चुनौती देता हूँ आज के दिन। There are things that the enemy is defying the children of God today, defying the church today. और उसी प्रकार से हम देखते हैं आज के दिन भी परमेश्वर के लोगों को दुनिया के लोग चुनौती देते हैं, कलीसिया को लोग चुनौती देते हैं। And Goliath is challenging the army of Israel and he says, give me a man that we may fight together. और यही चुनौती देते हुए गोलियत एक व्यक्ति को जो है वो इजरायली सेना को कहता है कि एक व्यक्ति को भेजो तुम्हारी ओर से ताकि वो मुझसे लड़े इन शर्तों We पर। must try to understand the armies are placed on the two mountains. हमें ये समझना है कि दोनों सेना जो है पहाड़ी पर खड़े हैं And the challenge is coming from one side. और जैसे वो आमने सामने खड़े हैं, एक तरफ से चुनौती आ रहा है दूसरी सेना के लिए। And as King Saul and Israel heard these words, they were dismayed, they were greatly afraid. और जब शाऊल राजा इजरायली सेना का जो राजा है उसने सुना फिलिस्तियों के इस गोलायत की चेतावनी, तो पूरी इजराइल सेना जो है वो डर गई। But something is going to change in the story. लेकिन हम देखते हैं कि आगे ये कहानी बदलने वाली है, Because from verse 12 it says, now David. क्योंकि 12वें वचन से लिखा Hallelujah. गया है कि अब दाऊद। You should take your name now Edwin. तो आपको अपना नाम लेकर कहना है कि अब मैं, Now it is my time. कि अब मेरा समय है, It is my time to face the giant and overcome the कि giant. अब मेरा समय है दानव का सामना करके उसको हराना। You need to declare it. You need to decree it in your own life in the name of Jesus. तो आपको ऐसे अपना नाम लेकर कहना है कि मैं उसको हराऊंगा। And you know that his father, David's father Jesse, they had 8 sons. और जो है दाऊद का पिता जैसे उसका नाम है, उसके 8 पुत्र थे And out of them, 3 had gone to follow Saul to battle. और वो 8 पुत्रों में से 3 जो सबसे जो बड़े जो पुत्र थे वो शाऊल के सेना में भर्ती हुए And they had really good names. और उनके नाम भी जो है उनके नाम का अर्थ भी अच्छा था। One is, the name is Eliab. सबसे बड़ा जो है एलियब, It means God is father. It's a good name. एलियब का मतलब है कि परमेश्वर पिता है, यानी कि अच्छा नाम है। The second son name was Abinadab. दूसरे का नाम था अबिनादाब, My father is willing. मतलब कि मेरे पिता इच्छा रखते हैं। And the third son that went out for battle was Shammah. That means astonishment. और तीसरा जो है उसका नाम था शमा, यानी कि आश्चर्य। But having all these good names, they still didn't have the courage to defy and defeat the giant named Goliath. ये इतने सारे
अच्छे नाम होने के बावजूद उनमें जो है क्षमता नहीं थी कि जो है अपने नाम के अनुसार वो युद्ध लड़े और जो है इस गोलियत का वो सामना कर सके। We may have good names, but we need the ingredients to defeat the enemy that is challenging us day after day after day in season and times. तो हम देखते हैं कि हमारे नाम या हमारे नाम का अर्थ जो भी हो जो है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम वचन के अनुसार सारी बातों को समझते हुए जब हम दानवों का सामना करते हैं परमेश्वर के नाम से तो हम सफल होते हैं। The Bible says that David was the youngest, बाइबल में लिखा गया है कि दाऊद सबसे छोटा बेटा था and the three oldest that followed King Saul into battle. और शाऊल की सेना में सबसे बड़े 3 जो बेटे थे वो ऑलरेडी भर्ती थे सेना में। And David was looking at the sheep, the flock. और दाऊद का काम था अपने पिता के भेड़ को चराना। In the meanwhile, the Philistine, they drew near and for 40 days, morning and evening, challenging the armies of Israel. और हम देखते हैं फिलिस्ती सेना जो है वो इज़राइल को बार बार चुनौती दे रहे थे और सुबह शाम चुनौती दे रहे थे 40 दिनों तक। So there are two things happening here. तो हम देखते हैं यहाँ 2 बातें हो रही हैं। One is at the mountains, this Goliath is challenging Israel, and at this side, David is there with the flock, and his father tells him, "Take now for your brothers food." हम देखते हैं कि एक तरफ पहाड़ी पर फिलिस्ती सेना इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है आकर लड़ने के लिए, दूसरी तरफ दाऊद अपने पिता के भेड़ों को चरा रहा है और जो है हम देखते हैं वहां पर दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा कि भोजन लेकर अपने भाइयों को जाकर दो। Carry these 10 cheeses to the captain of the household. और जो है Why I'm saying cheeses? आगे Because लिखा गया David was like a pizza delivery boy. 18वें वचन में आप जैसे इसको पढ़ोगे, और पनीर के ये 10 टिक्कियां उनके सहपति के लिए ले जा। ये क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पनीर जो है, जैसे लोग आजकल जो पिज्जा खाते हैं, तो एक प्रकार से दाऊद के पिता ने जैसे दाऊद से कहा जाकर ये पिज्जा की डिलीवरी अपने भाइयों को दे दो, उस प्रकार से। Whatever may be your position, if God has called you, you will conquer the enemy. ये क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि आपको ये समझाने के लिए कि आज का आपका जो पद चाहे जो भी हो, परमेश्वर ने आपको चुना है बड़े कार्य हासिल करने के लिए। We need to understand what is happening during the fight over there at David, and God is working in him here. हम देखते हैं कि एक तरफ जहां 2 सेना के बीच में युद्ध होने जा रहा है और यहाँ पर दाऊद अपने पिता के भेड़ को चरा रहा है, And his father told him to go and take food. और जो है दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा कि ये भोजन अपने भाइयों के लिए जाकर ले जाओ। If you see the earlier chapter, David was already anointed by God. हम देखते हैं कि इसके पहले के अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद पर अभिषेक भेजा। He could have said, "Hey, I'm anointed by God and you're telling me to carry all this food over there." तो दाऊद अगर चाहे तो अपने पिता से कह सकता था कि मुझ पर परमेश्वर ने अभिषेक भेजा है, तो इसके बावजूद तुम मुझे भेड़ चराने का काम दे रहे हो या अपने भाइयों के लिए जो है भोजन की डिलीवरी देने के लिए कह रहे हो। The first point to defeat your giant, you must have this, is called submission. तो सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन के दानवों को हराना है तो सबसे पहले हमें अधिकार, जो हमारे ऊपर जो अधिकार रखते हैं, उनके प्रति खुद को समर्पण करते हुए रखना जरूरी है। Submit to your parents. अपने माता पिता के प्रति समर्पण करो। Submit to those in authority. जो आपके ऊपर अधिकारी है उनके प्रति समर्पण करो। Submit to your leaders. आपके जो अगुवे हैं उनके प्रति समर्पण करो। And that is a very important thing to defeat your giants. और ये सबसे पहला कदम है अपने खुद के जीवन के दानवों को हराने के लिए। Maybe you are not able to defeat your giants because these things are not there. हो सकता है आपके जीवन में सारे जो दानव जैसे परिस्थिति है, शायद आप उससे
उस पर जीत हासिल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने जीवन को जो है समर्पण नहीं कर रहे हो अधिकारी के सामने। Because maybe you are struggling because submission is not there. क्योंकि हो सकता है आप इतना संघर्ष इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद को समर्पण नहीं कर रहे हो दूसरों के सामने। So you see one thing in verse 20 it says, so David rose up early in the morning, left the sheep with the keeper and took the things and went as his father had told him. और दाऊद बिहान को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। The second thing needed to overcome and face the giants is to rise up early. तो दूसरी बात है कि अपने दानवों को अगर हराना है तो जल्दी उठना जरूरी है। Not being lazy, gets up early. आलसीपन में खुद को नहीं रखना है, जल्दी उठना है He जरूरी। must have recognized that there is something that is coming up. उसने ये एहसास किया होगा कि कुछ आ रहा है आगे। There is something that God is taking me. मतलब कि परमेश्वर मुझे किसी स्थान पर लेकर जा रहा है, इसकी जो समझ मुझे आ रही है। He didn't take it lightly. और इस बात को उसने हल्की रीति से नहीं लिया। That's why it says he rose up early. He got up. There was an action taking place into his life. और उसकी आत्मा में जो समझ उसको मिल रही थी उसके अनुसार वो सुबह सुबह जल्दी उठा ताकि जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए वो तैयार रहे। He was not only obedient, but he rose up to the occasion that was required of him. तो वो सिर्फ अपने जो पिता के प्रति अधीन ही नहीं था, वो अभी आगे जाकर जो है खुद को पूरी रीति से जो है जल्दी उठकर तैयार रख रहा है। Maybe we are struggling because we are not rising up to the occasion. That's why we are not able to face the giants or defeat them. शायद हम अपनी परिस्थिति को इसलिए नहीं हरा रहे हैं क्योंकि हम आलसीपन में रह रहे हैं और जल्दी उठकर खुद को तैयार नहीं रख रहे हैं ताकि जो भी चीजें सामने आने वाली है उसके हम तैयार रहे। You know, the Bible says in verse 20, and he came to the camp as the army was going out to fight and shouting for battle. आगे लिखा है, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। You know, in battle you can't be silent, you need to shout. तो तीसरा है कि युद्ध के टाइम पर जो है आप चुप नहीं रह सकते The हैं। enemy wants to intimidate you. आपको जो विजय में चिल्लाना जरूरी है क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करता है आपको हराने के लिए। He wants to make you weak. वो चाहता है आपको वो कमजोर बनाए। See, we are overcomers in Christ Jesus. लेकिन हम यीशु मसीह में विजयी ठहराए गए। And we know we wrestle not against flesh and blood against principalities and powers and rulers of darkness in high places. और हम जानते हैं कि हमारा युद्ध जो है दूसरे मनुष्यों के जो विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध आत्मिक दुष्ट आत्माओं के विरोध में है जो आत्मिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। So we need to see that they shouted. तो हम देखते हैं कि उन्होंने चिल्लाया। In the battle they shouted. They never kept quiet. They never kept silent. युद्ध में जो है जो सैनिक चिल्लाकर जाकर जो है युद्ध लड़ने जाते हैं, चुप रहकर युद्ध लड़ने नहीं जाते। That's why the promise of God, it's good you declare it, you speak it into your heart, but you need to declare it loud that I am a child of God, I am an overcomer, I am an ambassador, I can do all things through Christ who strengthens me. और इसीलिए जो है जब आप युद्ध लड़ रहे हो, इसी प्रकार से जैसी सेना जो है चिल्लाकर अपने जोश जो है अपने जीत को हासिल करने के लिए जो उस उल्लास से चिल्लाते हैं, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन को जोर से अपने मुंह से बोलना, घोषित करना जरूरी है, तब जो है वो कार्य करेगा। So he met the army over there, the soldiers over there, as he went to give food with his to his brothers. Then he left it, and then he met these people. तो अब देखते हैं कि अपने भाइयों को जब दाऊद ने जाकर भोजन दिया तो उसके बाद वो कुछ लोगों से मिला। You know, sometimes there are promptings in the spirit. कभी कभी हमारी आत्मा में
परमेश्वर कुछ बातें कहते हैं God will take you to a place for a purpose. और परमेश्वर तुम्हें कुछ ऐसे जगह पर लेकर जाएंगे एक उद्देश्य से। We are not here for pastime. हम अपना जीवन यूं ही नहीं गुजार रहे। We are here to carry out the things of God in our lives. हम यहाँ पर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। God has sent and chosen His people for a purpose to be accomplished on planet Earth. और परमेश्वर ने अपने लोगों को एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा। And you know what happens here? He goes there and he wanted to know what is the situation also. तो हम देखते हैं कि दाऊद उन लोगों से मिला, तब वो जानना चाहता था कि युद्ध भूमि में जो परिस्थिति कैसी है। So the men of Israel said, तो इजराइल के जो सेना ने उनसे कहा, have you seen this man who has come up? क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है जो हमारा विरोध कर रहा है? It's talking about Goliath. Surely he has come up to defy Israel, and it shall be that the man who kills him, the king will enrich him with great riches. और वो दाऊद से कहते हैं कि जो व्यक्ति राजा शाऊल की ओर से, इजराइल की ओर से लड़ने जाएगा और उस गोलियत को जो मार डालेगा, तो शाऊल राजा ने बड़े इनाम तय किए हैं उनके लिए। Even give him his daughter. और शाऊल राजा ने इसका भी वादा किया है कि वो अपनी बेटी का हाथ भी उसके हाथ में सौंप देगा। Also, what happened? Give his father's house exemption from taxes. और उसके खुद के जो घराना जो है, जो व्यक्ति हराएगा गोलियत को, उसके घर का उसका घराना जो है कोई टैक्स नहीं उनको भरना पड़ेगा। So imagine David has the opportunity to get great riches. Number one. तो यानी कि अगर दाऊद को जो है ये अवसर जो मिला है कि अगर वो दानव को हराएगा तो सबसे पहले उसको महान जो है धन मिलेगा। Secondly, getting the king's daughter, that means he's going to move into the palace. दूसरा, उसको जो है राजा की बेटी से उसका विवाह तय होगा, यानी कि महल में जाने का अवसर मिलेगा। And number three, his father's house will be exempt from taxes. That means no taxes. Not only he, but his whole family would be exempted from taxes. और तीसरी बात कि उसके पिता का घराना भी कोई टैक्स जो है, जो कर उनको जो है देना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर उसने गोलियत को हराया तो वो भी बहुत सारी चीजों को हासिल करेगा, साथ साथ उसका पूरा घराना भी जो है आशीषों को पाएगा। This was a promised reward. तो in number 4. ये जो है इनाम का जो वादा दिया गया था उस व्यक्ति के लिए जो उस दानव को मार डाले। So earlier there was submission. तो सबसे पहले जो है उसको अधीनता में रहना था दूसरों के प्रति। Secondly, he was rising up early. अधीनता में रहते हुए सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत। Then it was a shout. उसके बाद विश्वास से चिल्लाना। Then there was a promised reward that was awaiting. और फिर इनाम का जो वादा उसका इंतजार कर रहा है। So we must see that all these things are coming together for something that God is going to do for Israel. तो ये चारों बातें जो है इस अपेक्षा से रखी गई है, ये आशा देने के लिए कि परमेश्वर इजराइल के लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है। So David spoke to the men who were saying, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? तो दाऊद ने पूछा उन लोगों से कि अगर कोई इस बात को पूरा करेगा, उस दानव को हरा देगा, तो जो है क्या उसको जो मिलेगा इजराइल की ओर से। Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Hallelujah. He has declared something. दाऊद ने इस बात को समझा कि ये फिलिस्ती का दानव कौन है जो जिसका खतना भी नहीं हुआ है, वो आकर इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है, जो जीवित परमेश्वर की सेना है, ये वो कैसे कर सकता है। And then the people said again, the promised reward, they're reminding him, so shall it be done for the man who kills him. Second time the promise, it is coming up. तो लोगों ने फिर से दोहराया दाऊद के सामने कि इसीलिए तो जो है इस व्यक्ति को, इस दानव को जो हराएगा, जो है उसको राजा शाऊल ये सारे इनाम देगा। दाऊद को फिर से याद दिला रहा है उस इनाम के बारे में जो रखा है उस व्यक्ति के लिए जो उस दानव को हराएगा। Do you know that David, according to Leviticus, if you see,
circumcision was done on the 8th day of a child. लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जो हम देखते हैं, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि जो बच्चे के जन्म के 8वें दिन पर जो है बच्चे का खतना किया जाता था। That means on the 8th day a covenant was made. यानी कि 8वें दिन एक जो वाचा जो बांधा जाता था परमेश्वर के साथ। So David knew very well that he was in covenant not now, but from when he was a child, and the 8th day a covenant, he was into the covenant of God. दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छी रीति से Hallelujah. समझा कि उसको खुद जो है परमेश्वर के सामने जोड़ा गया था उस खतना के द्वारा जब वो 8 दिन का था। You are in the everlasting covenant because of what Jesus has done. और आज हम भी उस अनंत वाचा से जुड़े हुए हैं, जिसकी जो कारण है कि यीशु मसीह क्रूस पर गए और ये वाचा हमारे साथ बांधा है। That's why he called that Philistine uncircumcised, because he didn't know the covenant. He did not know, and he's challenging covenant people. और इसलिए दाऊद ने समझा कि ये दानव जिसका खतना नहीं किया गया है, जिसने खुद को परमेश्वर के आदि नहीं रखा है, वो बाहर वाला है। ये व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को चुनौती कैसे दे सकता है, जब उसमें जो है जीतने की क्षमता कैसे हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ नहीं। I believe the army of Israel had forgotten the covenants. इज़राइल की सेना इस वाचा को भूल गए थे जो उनके परमेश्वर के साथ बांधा गया था। That's why when David is coming up with this word uncircumcised, he's coming up with the covenant. और इसलिए जब दाऊद कह रहा है कि ये गोलियत जो है वो उसका खतना नहीं किया गया है, यानी कि वो कह रहा है कि उसका कोई जो वाचा नहीं बांधा गया है परमेश्वर के साथ, तो ये चुनौती कैसे दे रहा है। And now you'll see a first opposition coming against David. तो हम देखते हैं अभी आगे दाऊद के सामने जो है दूसरे लोग जो है नकारात्मक बातें लेकर आ रहे The हैं। first will be his older brother called Eliab. सबसे पहले जो है अलग अलग इल्जाम उसके ऊपर आ रहा है, और सबसे पहले ये करने के लिए उसका खुद का भाई एलियब, And his anger aroused against David. और उसका गुस्सा दाऊद के विरोध आया। For what you came here, this is not your work. और एलियब जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने दाऊद से कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब कुछ जो है तुम्हारे लिए नहीं है, And with whom you have left the few sheep. और ये तुम यहाँ जो अपना जो समय बिता रहे हो जो है तुमने अपने हमारे पिता के भेड़ों को कहाँ पर रखा है, किसके पास रखा। David was facing accusation. He comes up with something, he says that Eliab is saying, I know your pride. और यहाँ पर हम देखते हैं एलियब जो है दाऊद से कह रहा है कि इल्जाम लगाते हुए कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जो है घमंड है। For you have come down to see the battle. तुम यहाँ पर जो है युद्ध को देखने के लिए आए हो। Now, in facing the giant, accusation is coming first. तो जब आप अपने जीवनों के दानवों का सामना जब करोगे, उस समय लोग आप पर गलत इल्जाम लगाएंगे। Within your family. आपके खुद के परिवार के सदस्यों के बीच में से आएगा, Within people who are around. या आपके चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कोई आएगा, Within the vicinity. या आपके घर के क्षेत्र में से कोई व्यक्ति आकर तुम पर गलत इल्जाम लगा There is सकता an है। accusation that will come. गलत इल्जाम लेकर वो आएंगे तुम्हारे विरोध। And David said, what have I done? और दाऊद ने अपने भाई से पूछा कि मैंने क्या गलती की। I was only asking a question. मैं सिर्फ लोगों को जो है प्रश्न पूछ रहा था कुछ चीजों के बारे में। But after this accusation, we need to know how to, first we need to face the accusation. लेकिन जब ऐसा गलत इल्जाम लगता है तो सबसे पहले उस इल्जाम का सामना करना जरूरी You है। need to speak up and say, what have I done? तुम्हें सामना करते हुए पूछना जरूरी है कि मैंने क्या गलती की है, बताओ। People take you wrongly, they see you differently, they spoil your image. क्योंकि सामने वाले लोग जो है तुम्हें अलग दृष्टि से देखते हैं और तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। Now in verse 30, this is how he handles accusation. अब हम देखते हैं 30वें वचन में दाऊद ने इस इल्जाम का सामना कैसे किया। These are important things that happened in David to overcome Goliath. ये सारी बातें होना जरूरी था जिससे दाऊद को जो मदद मिले
दानव को हराने के लिए ये कैसा हो सकता है, ये हम देखेंगे। It says in verse 30, then he turned from him towards another and said the same thing, and these people answered him as the first ones. तब उसने उसके पास से मुंह फिरकर दूसरे से सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले की नहीं ही उत्तर दिया। So he turned away from his brother. First accusation, he turned away. तो जैसे ही उसके भाई ने इल्जाम लगाया उस पर, वो उससे मुड़कर दूसरी तरफ चला गया। Don't waste your time fighting with people. यानी कि अगर कोई आप पर इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हैं तो उनके साथ रहकर अपने समय की बर्बादी मत करो। Don't focus on thinking what people are thinking about you. और दूसरे तुम्हारे बारे में क्या गलत सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचकर आप आपको परेशान नहीं रहना है। David knew in his heart there was something greater coming up. दाऊद अपने हृदय में जानता था कि आगे परमेश्वर ने कुछ जरूर रखा है उसके So लिए, that's why he turned away. और इसलिए उस इल्जाम देने वाले व्यक्ति के ओर से वो मुड़ा और दूसरी तरफ चला गया। So you see over here in verse 33. 33वें वचन में हम देखेंगे अभी। He was brought before Saul. दाऊद ने जो बातें कही उसका जो है ज्ञान राजा शाऊल के पास गया। And David said to King Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. दाऊद जब राजा शाऊल के सामने आया तो उसने कहा, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, यानी कि गोलियत के कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। Now, number 33, verse 33. इस पर शाऊल ने दाऊद को जवाब दिया, You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are youth, and he is a man of war from his youth. Oh my God. तू जाकर उस फिलिस्ती के विरोध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो जो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही युद्ध कर रहा है। King Saul is telling David, you are young. यानी कि शाऊल राजा दाऊद को कह रहा है, तुम अभी छोटे लड़के ही हो, You are not able. तुम्हारे में क्षमता कहाँ है ताकि वो दानव का तुम करके उसको हरा दो। This is Goliath. This is not anybody. शाऊल राजा दाऊद को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई ऐसा वैसा सैनिक नहीं है, ये दानव गोलियत है जिसको हमें मार डालना है। He is facing inferiority. यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर जो है राजा शाऊल हीन भावना का सामना कर रहा है। He is making David to feel like he is small now. और अब वो दाऊद को भी इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो है हीन भावना उसके अंदर जो आ जाए, क्योंकि वो दानव है, तुम तो एक लड़के हो, ये हीन भावना आ रही है। Remember the word covenant. अब इसका सामना करने के लिए जो वाचा शब्द ध्यान में रखना There होगा। is a covenant in his heart. There is a covenant that is made with Jehovah on the 8th day of the child. दाऊद ने इस बात को पकड़ कर रखा कि जब मैं 8 दिन का था, परमेश्वर के साथ मेरा वाचा बांधा गया था खतना के द्वारा, और इसलिए मेरा परमेश्वर के साथ जो है जुड़ाव हो गया है, और इसीलिए जो है कोई हीन भावना को उसने जो है अपने अंदर आने नहीं दिया। David needed King Saul's permission. लेकिन दाऊद को राजा शाऊल की अनुमति की जरूरत थी दानव का सामना करने के लिए। So the next point is proved himself. तो दाऊद ने खुद को राजा के सामने साबित किया कि वो उसमें क्षमता है। He said to King Saul, उसने ये करते हुए शाऊल राजा से कहा, your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, दाऊद ने शाऊल राजा से कहा कि आपका दास अपने पिता के भेड़ बकरी को जब चराता था, और जब एक शेर या भालू उस भेड़ बकरी में से एक को ले जाने की कोशिश की, I would be there to deliver the lamb from its mouth. तो मैं उनके पंजों से, उनके मुंह से जो है इस भेड़ को छुड़ाता था, And struck the lion and killed it. और मैंने इस
शेर को भालू को अपने हाथों से मार डाला। Verse 36 says, your servant has killed both the lion and the bear, and not only that. और उसने आगे ये भी कहा कि मैंने दोनों शेर और भालू को अपने हाथों से मार डाला है, और यही नहीं, And this uncircumcised Philistine will be like one of them also. और उसने कहा Hallelujah. कि ये खतना न किया गया फिलिस्ती व्यक्ति भी उस शेर भालू की तरह ही होंगे मेरे हाथों से, Because he has defied the armies of the living God. क्योंकि इस फिलिस्ती Hallelujah. ने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। Children of the Most High God, you are chosen to be in the army, marching against the evil principalities that are coming against you. तो आप परमेश्वर के सेना के सैनिक हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आप में क्षमता डाली है ताकि आप अपने जीवन के सारे दानवों का सामना कर कर उन पर विजय हासिल कर सकते हैं। Every moment there is a conflict. हालांकि हर क्षण में कोई ना कोई चुनौती आता रहता The है, kingdom of darkness is challenging the kingdom of light. क्योंकि अंधकार का राज्य हमेशा प्रकाश के राज्य को चुनौती देता रहता है। But we are positioned to win because of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह की वजह से हम जीत की ओर खड़े हैं, It has been finished on the cross. क्योंकि क्रूस पर यीशु ने ये विजय हासिल किया Jesus has been resurrected. और यीशु का पुनरुत्थान हुआ And he sits at the right hand of the Father. और वे पिता के दाहिने ओर विराजमान है, You are clothed and robed with righteousness. और आप पर धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं। Your hands have been trained for war. तुम्हारे हाथों को युद्ध के लिए जो है सक्षम बनाया है। You must know that you are in covenant with the Most High God because of Jesus Christ. और आपको ये बात जान लेना है दाऊद की तरह कि यीशु मसीह के द्वारा वाचा तुम्हारे साथ भी बांधा गया है, यीशु मसीह के कार्य की वजह से। David proved himself before King Saul. और दाऊद ने ये सारे बातें कहकर खुद को जो है राजा के सामने ये साबित कराया कि उसके अंदर वो क्षमता है उस दानव को हराने के लिए। That bear and the lion, I took him, took them out. दाऊद ने कहा कि वो शेर और भालू को मैंने यूं ही मार डाला हाथों से, I've got the experience. यानी कि मेरे पास जो है अनुभव है। God worked miracles in me. मेरे द्वारा परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार किए हैं। This is my testimony to you. और He's ये- giving a testimony to King Saul. ये सब बातें कहकर दाऊद अपनी गवाही दे रहा है शाऊल राजा के सामने कि कैसे परमेश्वर उसके साथ है। Whenever you give a testimony, it will always be followed by another miracle. और जब भी हम Hallelujah. गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, तो एक और चमत्कार हमारे जीवन में होने के लिए तैयार रहता है। He took this opportunity in speaking to King Saul. और यही अवसर दाऊद ने लिया जैसे वो शाऊल राजा से बात कर रहा है। Whenever you are faced with accusation, whenever you are faced by the enemy, take the opportunity and give God the glory to your testimonies. और इसीलिए जब कभी आपके सामने कोई भी चुनौती आता है तो अपने वाचा को याद करके, जो आपके परमेश्वर के साथ आपके साथ जो वाचा बांधा गया है उसको याद करके आत्मविश्वास से प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो, और जो प्रभु करता है उसकी गवाही देते हुए और अपेक्षा रखो और चमत्कार होने की। The testimony may be 30-year-old, 20-year-old, 10-year-old, 1-day-old, but the testimony is a living testimony because God was in it. और जब भी आप Hallelujah. गवाही दो, चाहे वो एक दिन पहले जो हुआ था उसकी गवाही हो, या 5 साल पहले हुआ था उसकी गवाही हो, या 10 साल पहले की जो गवाही हो, लेकिन आप जो है घोषणा कर रहे हो, दूसरों को बता रहे हो कि जीवित परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसमें सामर्थ होता है। If you are in Christ, you are in covenant, the eternal covenant. और जब हम यीशु में है, हमने यीशु को स्वीकार किया है हमारे जीवन में, तो हमारा परमेश्वर के साथ वो वाचा बांधा जाता है। You have the spirit of the living God inside of you. और उसकी वजह से पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करने आती है, You are the temple of the Holy Spirit. और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है, You are more than a conqueror in Christ Jesus. और आप विजयी से बढ़कर
व्यक्ति कहलाते हो, You have the favor of God upon your life. क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर आती है। You got the hand of the living God upon you. जीवित परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own और understanding. इसलिए परमेश्वर पर पूरा विश्वास कर अपने सोच के अनुसार आपको कार्य नहीं करना। I tell you, if Goliath was there, there was something that was greater than Goliath that was upon David. तो हालांकि दानव गोलियत इजरायली सेना के सामने खड़ा था, भारी भरकम, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी दाऊद था, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ जीवित परमेश्वर है। So the testimony he gave, he proved himself before King Saul. तो अपनी गवाही को देखकर उसने राजा के सामने ये साबित किया कि मुझ में क्षमता है इस दानव को हराने के And लिए। not only that, he said that he will deliver me from the hand of the Philistine. Jehovah God will deliver me. और दाऊद ने राजा शाऊल से कहा कि मेरा जीवित परमेश्वर मुझे इस दानव के ऊपर विजय देगा। You know, King Saul also was anointed and appointed. अब हम जानते हैं कि शाऊल राजा पर भी एक समय जो है परमेश्वर का अभिषेक आया था, But why didn't he rise up to that occasion? तो फिर शाऊल राजा ने खुद इस अवसर को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? Because he lost the anointing, he lost the idea of covenant. क्योंकि उसने जो है वाचा के इस बंधन का सामर्थ्य भूल गया, और जो है इसी कारण से उसके अंदर वो क्षमता चली गई, वो अभिषेक चला गया। People of God, God will never let you down. परमेश्वर आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। The power that is moving in you has already been begun to work inside of you. और जो सामर्थ परमेश्वर ने आपके लिए दिया वो अभी भी आज तक भी कार्य कर रहा है। Only thing, there has to be a stirring inside of you. लेकिन उसको कार्यशील पूरी रीति से बनाने के लिए हमें जो है अनुमति देना है परमेश्वर को, ताकि वो हमारे अंदर जो है कार्य कर हमारे अंदर से वो बातें निकले, विश्वास। Never see how young you are, how old you are. Look at the covenant. और कभी भी ये नहीं देखना है कि हमारी उम्र क्या है, हम कितने छोटे हैं या कितने उम्र के हैं, क्योंकि वाचा अगर हमारा बांधा जा चुका है परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा, तो हम विजय हमारे हाथों में दिया गया है। So Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." तो ये Hallelujah. सारी बातें दाऊद की सुनने के बाद शाऊल राजा ने कहा, ठीक है, जाओ और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ हो। Go into all the world. जैसे यीशु ने कहा कि पूरी पृथ्वी में जाओ, Preach the good news. शुभ समाचार को प्रचार करो, Make disciples. Teach them. यीशु के और शिष्य बनाओ, And वचन सिखाओ, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और उनको बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। The Lord is with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Many things will try to stop you. चाहे जो कोई भी चीजें तुम्हारे विरोध आए तुम्हें रोकने, I said before, though there be giants in the land, I will not be जैसे afraid. हमने पहले कहा कि चाहे दानव भी भूमि में हो लेकिन हम डरेंगे नहीं। So King Saul said, "Okay, go." तो शाऊल राजा ने कहा ठीक है, जाओ। But it also says, लेकिन आगे ये भी लिखा है, Saul clothed David with his armor, शाऊल राजा ने दाऊद के ऊपर अपना शस्त्र डाला and he also gave him his sword. और उसकी तलवार उसके हाथों में सौंपा। But you know it says in verse 9, "For he has not tested them." David had never tested it. लेकिन जो है आगे लिखा गया है कि दाऊद को जो है ये तलवार और शस्त्र पहनकर जो है जो लड़ने की आदत नहीं थी। The Bible says, बाइबल कहता है, "For our weapons are not carnal, कि हमारे शस्त्र दुनिया के तरह नहीं है, but they are powerful to pulling down of strongholds." लेकिन उनमें Hallelujah. सामर्थ है सारे दुष्ट गढ़ों को नीचे गिराने के लिए। And that's why David said to Saul, और इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा था "I cannot walk in this, कि मैं इस शस्त्र और तलवार को लेकर के चल भी नहीं सकता, for I have not tested them. क्योंकि मुझे इन चीजों का इस्तेमाल करने का अनुभव नहीं। I know the covenant armor. मैं जानता हूँ कि जो वाचा का शस्त्र का इस्तेमाल कैसे I know the covenant power. वाचा का सामर्थ में कैसे कार्य करना ये मैं जानता I हूँ। know the covenant walk.
ये मैं जानता हूँ कि शस्त्र की चाल कैसी होती So है। David took them off. और जो है दाऊद ने शाऊल राजा के सारे शस्त्रों को निकाल दिए जो शाऊल ने उसको पहनाया, Because David knew he was protected by Jehovah. दाऊद जानता था कि वो यहोवा के द्वारा सुरक्षित है। Then it says he took it off. इसलिए बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने शाऊल राजा के सारे शस्त्र जो उसके ऊपर डाले गए थे वो उसने निकाल दिया, And he took his staff in his hand. और उसको जो अनुभव था इस्तेमाल करने का, यानी कि उसकी लाठी उसने ले लिया And he chose 5 smooth stones. और 5 पत्थरों को उठा लिया जमीन में से, And he put it in his bag. और उसने अपने झोले में उनको डाला। It says he put it in his shepherd's bag. लिखा गया है कि उसके पास जो झोली था उसमें उसने उन पत्थरों को डाला। Whatever you are right now, God will still work through you his power. परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेंगे उसके सामर्थ्य से। And he took a sling in his hand. लिखा गया है कि उसने अपने चरवाह के झोले को अपने साथ लेकर वो गया। The best part, he never stood there. He drew near to the Philistine. He went near. There was no fear. हम देखते हैं दाऊद के अंदर किसी भी प्रकार का जो डर नहीं था, वो पूरे विश्वास से ये जानते हुए कि परमेश्वर उसके साथ है, वो गया दाऊद का सामना You करने। know, loving people of God, it is fear that tries to cripple you. और हमें ये जान लेना है कि जब परिस्थितियां आती है तो सबसे पहले डर की आत्मा हम पर हावी होने की कोशिश करता है। Don't see how big your giant is, see how big your God is. और इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि हमारे सामने का दानव कितना बड़ा है, हमें ये देखना है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है कार्य करने के So लिए। when the Philistine came and drawing near to David, जब फिलिस्तियों आगे आए दाऊद के करीब, and he saw David, उन्होंने दाऊद को देखा, he said, "You are only youth." तो उसने कहा तो तुम तो एक युवक ही हो। Again, he's trying to make him inferior. यानी कि युवक कहकर जो है वो दाऊद को जो है हीन भावना का जो है अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। The Philistine told David, "Am I a dog that you have come to me with sticks?" और उस दानव ने कहा, क्या मैं एक जो कुत्ता हूँ, तुम लाठी लेकर मेरे पास आए हो? And he gives David by his gods. और उसके देवताओं के द्वारा दाऊद को जो है देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर श्राप देने लगा। Remember, David has his God on his side. अब हमें ये याद रखना है कि दाऊद के पास उसका जीवित परमेश्वर है। Philistine Goliath had his gods, so-called gods. लेकिन फिलिस्ती दानव के पास उसके देवता सारे हैं, And he spoke to him very harshly. और श्राप देते हुए बहुत ही क्रूरता से दाऊद से उसने बातें की That I will give your flesh to the birds. कि मैं तुम्हारे मांस को पंछियों को खिला दूंगा। And David never shut his mouth. अब ये सब बातें सुनकर दाऊद भी चुप नहीं बैठा। You come to me with sword, दाऊद ने दानव से कहा, तुम तलवार लेकर मेरे पास आयो, with a spear and a javelin. और जो है ये आपकी लाठी लेकर तुम जो है अपने शस्त्र को लेकर मुझसे लड़ने आए हो। Let me remind you, David is saying, I am in covenant. दाऊद जो है दानव को याद दिलाता है ये कहकर कि मैं जीवित परमेश्वर का दास हूँ। He says, I have come to you in the name of the Lord of hosts, और यहोवा परमेश्वर के नाम से तुमसे लड़ने आया हूँ। the God of the armies of Israel, whom you have defied. उस परमेश्वर, इज़राइल के जीवित परमेश्वर जिसको तुमने चुनौती दिया है, उसके नाम से मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। When you are facing the giants, you must speak to the giant. और जब तुम ऐसे दानवों का सामना करते हो जो तुमसे क्रूरता से बात करते हैं या श्राप देते हैं, तो जो है आपको उनका सामना करते हुए क्या कहना है ये जानना भी जरूरी है। There are good Christians, अच्छे मसीह है ऐसे, but they are very shy. लेकिन जो है
कुछ मसीही बहुत शर्माते हैं अपने स्थान पर दृढ़ खड़े रहने के। You must rise to the occasion. लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उठ खड़े होना जरूरी होता है। When it's the time to speak, you speak. और जब वो समय आता है कि आपको बोलना है तो आपको बोलना ही होता You है। don't have to speak to all these small things. When the giant really comes and you speak to him. वो छोटे मोटे जो आते हैं और चीजें बोलते रहते हैं उनको अनदेखा करो, लेकिन सच में एक बड़ा दानव जब तुम्हारा सामना करता है तो तब आपको उठकर चीजें घोषणा करना जरूरी होता है। Imagine David is saying, the Lord will deliver you into my hand. आगे दाऊद उस दानव को कहता है कि परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथों सौंप देगा And I will strike you and take your head from you. मैं तुम्हें मार डालकर तुम्हारा सर अलग करूंगा And give your body to the birds. और तुम्हारा शरीर मैं पंछियों को खिलाऊंगा That all the earth may know that there is a God in Israel. और पूरी Hallelujah. पृथ्वी जान जाएगी कि इज़राइल में एक जीवित परमेश्वर है। And all this assembly, all these people और ये सारे लोग जो देख रहे हैं shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Hallelujah. और वो उस पूरी जो मंडली जो इकट्ठा हुई थी, जो सारे सैनिक इकट्ठा हुए थे, वो कहता है कि ये सारे लोग जान जाएंगे कि परमेश्वर हमें जीत तलवारों और भाला के द्वारा जीत हासिल नहीं कराता, लेकिन परमेश्वर जो है अपने नाम से जो है हमें जीत देता है। So one thing David knew was he was in covenant. तो सबसे पहले दाऊद जानता था कि वो वाचा से बंधा हुआ है। He knew he was following protocol that came only from the government above. वो जानता था कि स्वर्ग का जो भी जरूरत है उससे वो उसे पूरा कर रहा था, जो उद्देश्य को पूरा कर रहा था। He knew that he was in submission. वो जानता था कि वो अधीनता में जीता है। He knew that he had to rise early. वो जानता था कि मुझे जल्दी उठना जरूरी है। He knew that he had to speak out and shout. वो ये जानता था कि उसे मुंह से चीजें जो प्रभु का वचन घोषणा करना आता था। He knew the promised reward. वो जानता था इसका इनाम क्या है। So standing there, he is reminded. He knows about the reward. तो जैसे वो खड़ा है युद्ध भूमि में, वो अपने इनाम को मन में रखे हुए है। I have to just kill this guy and great riches are coming. Immediately from shepherd boy, I'm going to become rich. वो जानता था कि जैसे ही इस दानव को मैं मार डालूंगा तो चरवाह से मैं जो है बहुत ही धनी व्यक्ति हो जाने वाला हूँ। From the field, I'm going to enter palace by getting that daughter of the king. खेत से निकलकर मैं सीधा महल में पहुंचने वाला हूँ। Another thing, not only me, but my family is going to be blessed because no taxes. और ये भी जानता था कि वो ही आशीषित नहीं होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ उसका घर परिवार भी आशीषित होने वाला है, क्योंकि आगे से उनको कोई जो टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। When you face your giant, not only you are blessed when you defeat the giant, but your family and your generation will be blessed, and that is the things that come from God. और इसलिए हमें समझना है कि चाहे जो भी दानव का सामना हमें करना पड़े जीवन में, जब हम उन दानवों को, हमारे दानव जैसे परिस्थितियों को जब हराते हैं, तब जो है जीत हमारी ही नहीं होती है, हमारे साथ साथ हमारा घर परिवार भी आशीषित होता है। जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे भी आशीषित होते हैं, इसलिए क्योंकि तुमने अपने दानव को हरा दिया। And that is how the story goes. David struck him with the sling. और इसलिए आगे लिखा गया है कि दाऊद ने गोफन का इस्तेमाल करते हुए जो पत्थर से इस दानव को मार डाला। 5 stones, but only 1 stone was used. 5 पत्थर उसने लिए थे, लेकिन 5 में से उसने 1 पत्थर का ही इस्तेमाल किया। What about the 4 stones? तो बाकी के 4 उसके साथ क्या किया? Maybe he had reserved it for the other 4 giants that they had later killed. शायद बाकी के 4 उसने दूसरों के लिए रखा हो, जो दूसरे जो विरोधी जो थे, जिसका सामना उसको करना पड़े, उनके लिए रखा। So we need to understand that there are reasons why
the enemy is attacking you and how we need to tackle it in our daily lives. हमें समझना है कि शत्रु हमारा विरोध करता रहता है। हमें जान लेना है कि उनका सामना, शैतान का सामना और उसके कार्यों का सामना हमें किस प्रकार से करना चाहिए, ये हमें जान लेना जरूरी होता है। And David, he cut the Philistines, Goliath's head, and he took it all the way the head, where? To Jerusalem. आगे लिखा है कि दाऊद ने फिलिस्ती का सर काट कर उसे यरूशलेम तक ले गया, So that people may know ताकि लोग देखकर जान ले that God gave Israel victory. कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जीत दी। God has given us victory. उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने हमें जीत दिया है, Do not fear. इसलिए हमें डरना नहीं है। That's why in facing the giants we need to know of certain things. लेकिन दानव का सामना करते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता We है। are struggling and struggling and struggling because there is no submission. लेकिन हम संघर्ष करते हैं ऐसे दानव जैसे परिस्थिति में, क्योंकि शायद हम में वो दीनता नहीं हो, We are not in our lifestyle in rising up early to worship our God. या फिर हम सुबह सुबह उठकर आराधना नहीं करते हैं परमेश्वर की, जिससे हम तैयार नहीं रहते हैं पूरे दिन के लिए। Our promises which God has given us is fading. It's become blurry. या फिर जो वादे प्रभु ने हमें दिए हैं, शायद उनको हमने याद नहीं रखा कि वो क्या क्या है हमारे लिए। You know there's a song, वादों को करता है पूरा. जैसे हम वो गीत गाते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। God is completing every promise that He has said. परमेश्वर ने जो भी वादे दिए हैं वचन में, हर एक को परमेश्वर पूरा करता रहता है। But we need to come under the governance of how God wants us. लेकिन वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति अधीनता में रहना बहुत जरूरी होता है। How we need to face accusations. और जब दूसरे इल्जाम लगाते हैं तो उन इल्जाम का सामना भी करना हमें आना चाहिए। How we need to face inferiority. और हीन भावना भी जब आता है हमारे सामने तो उसका सामना भी करना आना चाहिए। How we need to face jealousy. जलन का सामना करना आना चाहिए। People will condemn you. लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे, No issue. उससे आपको जो हिलना नहीं है। You need to prove yourself. आप अपने आप को सही साबित करो। What God has done for you in the past, He will do it much more in the coming time. और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले भी किया है, आगे भी वो अच्छे कार्य करता रहेगा। That means David had everything in his heart, in his mind, everything that God was there. That's why he was so confident in defeating Goliath. दाऊद ने याद रखा जो भी परमेश्वर ने उसके द्वारा किया, और उसी विश्वास के वजह से वो जानता था कि आगे ये जो दानव खड़ा है उसको मैं आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से मेरे साथ रहा है और अभी भी हो। Wherever you go, carry your testimony, what God has for you. और इसलिए आप जहाँ Hallelujah. कहीं भी जाते हो अपनी गवाही को साथ साथ लेकर जाओ। Go as yourself. Don't go as someone or a big name or something like that. Just go as yourself because the Spirit of God is in you. और आप जैसे हो वैसे ही जाओ अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति ले करके, और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कार्य करते रहेंगे। Don't try to become someone else. किसी और की तरह होने की कोशिश नहीं करो, आप जैसे हो वैसे ही जाओ प्रभु के नाम से। I want to encourage you. हम आपको आज प्रोत्साहन देना चाहते हैं God has called you. कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, God has chosen you. परमेश्वर ने तुम्हें चुना, God will raise you up. और परमेश्वर तुम्हें उठाएंगे। He will lift you. वो तुम्हें ऊपर उठाएंगे परिस्थितियों में। As Israel was the apple of God's eye. जैसे इज़राइल परमेश्वर की आँख की पुतली है, God's eye is on your life. वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर भी है। He doesn't want you to struggle. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप संघर्ष करते रहो Don't be worried about the cares of the world. और दुनिया के सारे परिस्थितियों को लेकर के चिंता में मत जियो, Do not allow the enemy to invade you or your family. और शत्रु को अनुमति मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो सके, तुम्हारे परिवार के ऊपर हावी हो If you win against the Goliath in your life, your family also will be blessed. और ये जान लो कि जब आप अपने जीवन के दानव को हरा दोगे तो ये जीत आप
आपकी होगी और साथ साथ आपके परिवार की जीत भी होगी। Submit to God and walk in the destiny that He has called you. परमेश्वर के सामने अधीन रहो, सारी बातें समर्पण करते रहो और तुम्हारे सामने परमेश्वर गवाही रखेंगे। And Father God, we come to you today, और परमेश्वर आज के दिन हम आपके सामने आते हैं प्रभु। knowing that you are a great God. और हम जानते हैं आप महान परमेश्वर हो। We acknowledge you as our Lord and our हम Savior. अंगीकार करते हैं आप हमारे प्रभु है, आप हमारे उद्धार करता है। Thank you, Lord, that our hearts have been circumcised today. धन्यवाद प्रभु कि हमारे हृदय का खतना हो चुका है। Your laws have been written on our hearts, my God. आपके कानून हमारे हृदय पर लिखे जा चुके हैं। Every time we cry, you wipe our tears, my God. और हर बार जब हम रोते हैं तो आप हमारे आंसुओं को पोंछते हो। Thank you, my God, for every promises are yes and amen in Christ Jesus. धन्यवाद प्रभु कि हर वादा यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया जाता है हमारे जीवन में। Today we submit to you, God. और आज हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं पिता आपके हाथों में। We lay everything today, Lord, at the altar. और पिता परमेश्वर हम अपने सारी चीजों को वेदी के सामने रखते हैं। We yield ourselves to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हम आपके अधीन आते हैं प्रभु। If you are hearing this message for the first time, और अगर आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं, God is touching your life. तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। Give yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। Know Jesus as Lord and Savior. यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दो और उसे अपना उद्धारकर्ता बनाओ। And He will turn and transform your life. और वो आपके जीवन को बदलेगा। He will change you. वो आपको बदलेगा। Not only that, your families will be touched. साथ साथ तुम्हारा घर परिवार भी जो है उनको भी प्रभु स्पर्श करेगा। Because you are being touched by the Master. क्योंकि आपको जीवित परमेश्वर स्पर्श करने वाले हैं। We are the clay and He is the potter. क्योंकि वो कुम्हार है, हम मिट्टी है उसके हाथ The में। Lord our God is our maker. हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे बनाने वाला परमेश्वर है। Today we submit our lives into His great और hand. इसलिए आज हम अपने जीवनों को उसके हवाले समर्पण करें। We are well protected by the one who has chosen us. क्योंकि जिसने हमें चुना है वो हमारी सुरक्षा भी करता है। Father, forgive us today पिता हमें क्षमा करो आज के दिन प्रभु। if we have gone away from covenant, अगर हम वाचा से दूर हो गए हैं, if we have allowed fear to enter our hearts and our minds. अगर हमने भय को हमारे हृदय और मन में आने दिया हो, Today we declare आज हम घोषणा करते हैं that we are the children of the Most High God. कि हम महान परमेश्वर के बच्चे हैं। We are not losers, but we are winners in Christ Jesus. हम हारे हुए नहीं हैं, लेकिन हम जीत को हासिल किए हुए हैं यीशु में। That we will prosper in every area of our lives. और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम सफल होंगे। No matter how big the giant that you are facing today, और इसलिए चाहे आप किसी भी प्रकार के दानव का अगर सामना कर रहे हो आज, remember there is a bigger God in your side. याद रखो कि उससे भी ज्यादा बड़ा आपका परमेश्वर है जो आपकी ओर से खड़ा है। Day after day the enemy is challenging, हर दिन शत्रु चुनौती देता रहता है, but we come with the word of God. लेकिन हम परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े होते We हैं declare the promises of God. और वादों को मुंह से घोषित करते हैं। We declare the testimonies that God has done in our life. और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसकी गवाही देते रहेंगे। Declare the greatness of God, what He has done in your life. और प्रभु ने जो कार्य किए हैं उसकी भलाई का गवाही हम देते रहेंगे। Father, touch our hearts. प्रभु हम सबके हृदय को स्पर्श करो प्रभु। We declare your goodness over our lives once again. आपकी भलाई सबके जीवन के ऊपर रहे प्रभु। That the enemy has no chance to terrify us. और शत्रु को कोई भी अवसर नहीं देंगे हमें डराने के। Today I rebuke the spirit of affliction and oppression over you. और हर प्रकार के ये सारी दुष्ट चीजों को हम नकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। God has chosen you to be blessed. परमेश्वर ने आपको चुना है आशीषित होने के लिए। God has chosen you to overcome. परमेश्वर ने आपको चुना है विजयी होने के लिए। God has chosen you to move ahead.
परमेश्वर ने आपको चुना है आगे बढ़ते रहने के लिए। God has chosen you to do great things. परमेश्वर ने आपको चुना है महान चीजें करने के लिए। God has chosen you to walk in power and authority. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में और अधिकार में चलते जाओ। You are not weak, but you are strong. इसलिए तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम बलवान हो। You have the richness of Christ over your life. क्योंकि यीशु मसीह का धन तुम्हारे अंदर डाला गया है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। May the Spirit of God work through your life. और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन के द्वारा कार्य करे। May this word be a blessing to you. और ये वचन आज तुम्हारे जीवन में आशीष लेकर आए। May the richness of God come right now over you. प्रभु की ओर से धन इसी समय तुम्हारे मनुष्यता में आए। I declare you healed right now by God's word. और परमेश्वर के वचन से हम घोषित करते हैं कि तुम चंगे हो गए हो। Every kind of addictions of you are in, I rebuke addictions. Be gone. Stop invading people's life in the name of Jesus. हर प्रकार की बुरी लत अगर किसी के जीवन में है तो हम उसे इसी समय डांटते हैं यीशु मसीह से, ये आदत छूट जाए यीशु के नाम से। If you are caught up in any net, I say that God will release you as you yield yourself to Him. और अगर आप किसी भी प्रकार के जाल में फंस गए हो तो हम इस समय यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं कि उस निकल आओ। I speak the freedom over your life. उस आजादी को हम घोषणा करते हैं आपके जीवनों के लिए। I pray that God would work powerfully through each one of you. और हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। May God keep you. परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। May His grace be sufficient for you. उसका अनुग्रह Hallelujah. तुम्हारे लिए काफी रहे। May the peace of God be always upon your life. परमेश्वर की ओर से शांति तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे। May you always walk with power and authority. और हमेशा तुम परमेश्वर के सामर्थ्य में और अधिकार में चलते रहो। May you always know that our God is a healer and the devil is a liar. हमेशा ये जान लो कि परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है और वो आपको विजय हासिल कराएगा। Rise up early in the morning every day हर दिन सुबह सुबह उठकर आराधना and करो declare that I am in victory. और घोषणा करो खुद के लिए कि मैं विजय में जी रहा हूँ। You have overcome the giant. ऐसा कर कर आप दानव पर विजय हासिल करोगे। Face the enemy. शैतान का सामना करो God is taking the church to greater heights. क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हैं। I declare the things of God's word into the atmosphere over the earth. और वचन के आशीषें हम पूरी पृथ्वी पर भेजते हैं, घोषणा करते हैं। It is God's word. क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं। That's why the Bible says the earth is filled with His glory. इसलिए वचन में लिखा है कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। The devil is frightened because the glory of God is coming forth. और शैतान डरता है जब परमेश्वर की महिमा आकर कार्यशील होती है। Whenever you speak God's word, the glory of God comes. और जब आप विश्वास से वचन को घोषणा करते हो उससे परमेश्वर की महिमा आ जाती है वहाँ। Speak the word of God in your life, the glory will come. उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को खुद के जीवन में घोषित करते रहो जिससे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में भी उतर आएगा। I am telling you, if there is any unsaved members in your home, speak the word of God into your home, into your family. Those unsaved will be redeemed in the name of Jesus. और अगर किसी का Hallelujah. उद्धार नहीं हुआ है आपके जो घर परिवारों में से, तो जो है ऐसा घोषणा करने से, वचन की घोषणा करने से आप परमेश्वर की महिमा को अपने घर में ले आने की वजह से उनका उद्धार होगा। We will be with the best place with God forever and ever. Hallelujah. जिससे हम सभी अनंत जीवन के लिए सबसे उत्तम जगह स्वर्ग में पहुँचेंगे। You are destined to reign. आपके जीवन के लिए तय किया गया है कि आप शासन करो। Once again, God bless you. फिर एक बार परमेश्वर आपको आशीषित करे। God keep you. प्रभु आपको सुरक्षित रखे। May you be fruitful. आप फलदायी बनो। May you multiply. बहु गुना हो जाओ। May you increase. आपकी बढ़ोतरी हो। May you prosper. आप सफलता प्राप्त करो। May your hands
Be blessed wherever you put your hands. और आप अपने हाथ जिस किसी कार्य पर लगाते हो उसमें तुम सफलता प्राप्त करो। May God be given all the glory. और इस सारी बातों के लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। Shalom. शालोम। Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे। Amen. आमेन।